Good afternoon, everybody. I think, am I audible? Can anyone acknowledge? Yes, ma'am. हाँ, नहीं तो आपकी Yes, क्लास ma'am. में इतने जो है परेशानियाँ होती हैं कि I was sitting मैम with my like session on for all of you to come and join. हाँ जी बेटे बोलो। मैम 37 रोल नंबर मुझे लिंक नहीं आ रही है आपकी। 37 यस बेटा मैं ना ऐसा कर रही हूँ, मैं नोट करती जा रही हूँ या आप चैट बॉक्स में डालो। यस यस से तो मैं नोट भी कर ही रही हूँ, बट स्टिल इन केस आई फॉरगेट, अभी क्योंकि मीटिंग चालू हो गई तो आई वोंट बी एबल टू एडिट दीज सेशंस। सो रोल नंबर 37 हैज टू बी एडेड। और कोई? चलिए, हाउ वाज द टेस्ट? वर यू एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस? Yes. How was the test? I just wanted to understand. It was easy and nice. हाँ, good. And related to programs, what is the status of your class? What are we actually studying in the lecture and lab? Because tutorials are meant to solve problems. So if you have any difficulty in any of the classes, हमने पिछली बार schedule करना था, but I don't know, it didn't happen, the scheduling of the class. So somehow, if we want to go back and discuss any point or any topic, so we'll do this today, right? So I just wanted to understand कि क्या चल रहा है और हमें अभी क्या डिस्कस करना चाहिए। Excuse me, ma'am. Ma'am, actually, this is my first class. I'm a new student. So the last lectures that have been missed by me, can you just share the recording for that and the notes? पता है रिकॉर्डिंग सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड बियॉन्ड द एक्चुअल पॉइंट्स हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज आई हैव क्रिएटेड अ क्लासरूम एंड देयर आर स्लाइड्स इन इट and each slide has some discussion of the topic, some understanding, and then certain problems that you need to solve. So you can follow that. Definitely वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप कंटेंट वाइज देखें। आप ये घंटे भर सुनोगे, आप पता नहीं इसमें से क्या आपको समझ में आए। इट्स बेटर दैट यू टेक अप दो स्लाइड्स एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इट इज़ ईजी, self understood. You don't need any reference to some other slides or other resources. Self explanatory hai and you can start doing that, right? Okay. So are you, have you joined classroom? No, ma'am, I have not joined the class. Ma'am, this is my first class. ओहो, So अच्छा। I don't आपका know anything. Ma'am, आपका नाम और वो बताओ एक बार। Ma'am, नाम। my हम्म। name is Prakhar Agarwal, and हम्म। the roll number is 103. ओके। और एक जने और कौन है जिनके सेम कंडीशन? 102। नेम Yes, ma'am. सर? नेम? My name is Dev Patel. देव पटेल। ओके, ठीक है। तो आप दोनों के लिए मैं अभी तो क्लासरूम का कोड शेयर कर दे रही हूँ, लिंक शेयर कर रही हूँ, सो दैट यू कैन जॉइन द क्लासरूम राइट अवे। अभी आप जॉइन करो सबसे पहले तो। इसके अंदर पे आपको सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी एंड you'll be able to follow up with what has been done in the class, okay? And for any other reason, if you need to understand something, you can definitely like contact, okay? So Okay, this ma'am. is Thank you, ma'am. ICN 2. Good Hmm? afternoon. Good afternoon beta. Point from 25 November. So can you send me that too? Yes, I'm sharing you the class link. And ma'am, I also do not get the link of the class. The WebEx link. Ah, yeah, the web is link. चलो रोल नंबर बताओ अपना। 25.
Huh? 95. 95. And your name, beta? Vani Jain. Vani Jain. Okay, I'll add all of you because the settings won't allow me to add you in the participant list right this time. But definitely, as soon as I finish with the class, I'll add you all to the WebEx group. Okay, so that you get in the invite for the classroom, this thing, the class, WebEx class. And I have posted the invite link for Google Classroom that I have created to post all the resources. So you can even join that. Okay. And I have even posted some lab slides also in that. Although somebody else would be taking your lab, I am not supposed to take your labs. I am only taking the tutorials. But still, I have posted some slides that I am taking in other labs so that you just have a reference. We discussed it in the last tutorial that if there are slides, I can share it with you. So I've shared it through the classroom to you all. So basically for this particular session, as it is tutorial, the slides are T1, T2, T3, T4. You can find it in the classroom. Okay? And other resources. Thank you, So ma'am. follow that. Yes. Follow that. There's no sense in listening to what we are saying. हम लोग बहुत सारा बोलते हैं. Teachers tend to speak a lot. But the gist is in the slides. Okay? Okay. Thank you, ma'am. हाँ जी, ठीक है। आज फिर क्या डिस्कस करेंगे? लैब में क्या चल रहा है अभी? कैन एनीवन जस्ट एनलाइटन मी विद द स्टेटस ऑफ द लैब एंड लेक्चर? लैब में डू वाइल एंड वाइल वाले करा रहे हैं अभी उसके। और लैब में, ये लेक्चर में कि लैब में? प्रैक्टिकल में, लैब में। प्रैक्टिकल में, लैब में। और लेक्चर में? लेक्चर में मैम अभी तो टाइप कास्टिंग और वो सब चल रहा है, उसके आगे थोड़े। ओह, तो हम ज़्यादा स्पीड से भाग रहे हैं ट्यूटोरियल में। चलिए ठीक है। तो हमने ट्यूटोरियल जो लास्ट देखा था दैट वाज ऑपरेटर्स ओनली, राइट? And because you've started with loops and other things, so we can take up some logic building exercises, right? जिसमें थोड़ा सा हम कोशिश करें कि how will we take up loops or checking for the conditions and how do we solve certain problems. I will even give you certain code that you have to run and tell me whether it's working fine or not, or you need to do some changes in that code so that it works, right? तो ये हमें थोड़ा सा आज करना है। So और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है बिफोर आई बिगिन? राइट, तो हम लॉजिक पे पहुंचते हैं। सो आई विल गिव यू सम प्रोग्राम्स और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी द आउटपुट। एंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग anything related to programming, I told you in the last class also, and I keep on telling to the students that whenever you are going to write a program, it is a very simple set of steps that you can write to solve a particular problem. Say it, आप लोगों के घर में आपने कभी छोटे बच्चों को पढ़ाया है जो कि 4th 5th 6th स्टैंडर्ड के होंगे? पढ़ाया है कभी आपने? मतलब किसी ने पढ़ाया हो तो यू कैन tell me so that we can discuss on that. Has anyone taken up teaching small kids? Anyone? कोई भी नहीं? किसी के भी छोटे भाई बहन नहीं है? Anyone? We can talk. This is tutorial. Tutorials are meant to discuss. No. किसी के भी छोटे भाई बहन नहीं है? Oh my God! मतलब ये पूरी मतलब क्लास ऐसी है जिनको पढ़ाने का मौका ही नहीं मिला किसी छोटे को। कभी वॉलंटरी पढ़ा लो। सारे सारे सबके बड़े हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, तो इमेजिन कर लो, लेट्स इमेजिन लाइक प्रोग्राम बनाते समय या इंजीनियरिंग करने आए हैं तो इमेजिनेशन इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू।
So imagine you are going to tell a student, a very small kid, say it, जिसको पहली बार डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना आया है, नया नया सीखा है, और उसे सिखाना है कि HCF कैसे निकालते हैं या LCM कैसे निकालते हैं. LCM थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम HCF पे आते हैं. 2 नंबर्स दिए जाते हैं, तो आप HCF निकालना सिखाओगे, उसके पहले आप सिखाएंगे कि उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं. रिमेंबर पेपर पेन मेथड? Yes, ma'am. Remember. So suppose you've been given a number 12, and before doing HCF, the very first thing that you have to tell the kid is that how to factorize it. So what do we do? The question is 12, right? तो 12 के लिए क्या करेंगे, क्या बताया, क्या समझाओगे आप उनको? मैम हम सिखाएंगे तो डायरेक्ट गूगल करना ही सिखा देंगे. इसीलिए तो बड़े बनो, थोड़े से सुधर जाओ. There is, see, when you were in 4th and 5th standard, 6th standard, there was no Google. You only had a teacher and parents at home जो कान पकड़ के सिखाते थे. तो ना वही काम आता है लाइफ में. गूगल तो ठीक है फॉर द टाइम बिंग. पैंडेमिक, एक्सेप्शनल सिचुएशन, एक्सेप्शनल कंडीशंस, सो एक्सेप्शनल वेज ऑफ स्टडिंग, बट द स्टीरियोटाइप रिमेन्स द सेम. ओके, सो सपोजिटली सबको फैक्टराइजेशन तो आता है ना, इतना गणित तो सब गूगल से भी करो या कहीं से भी करो तो सबको आता है, राइट? सो हाउ वुड यू फैक्टराइज 12? 2 cross 2 cross into 3. हाँ, तो आपको याद है वो स्कूल में डब्बा बनाकर करना सिखाया था, जैसे हमने नंबर सिस्टम में डिवाइड करते गए कंसेक्यूटिवली एंड राइटिंग द रिमाइंडर्स. देयर इज नथिंग लाइक राइटिंग द रिमाइंडर्स, बट यू कीप ऑन डूइंग द सेम मेथड. तो सपोज 12 था, तो 12 को आप क्या बताओगे सबसे पहले, उसको किससे डिवाइड करें? 1 से, फिर 2 3 से. कैसे होगा? 3 से. बहुत बहादुर बच्चे हो भाई. 2 को क्यों छोड़ा? 2 ने क्या बिगाड़ा था आपका? 1 और 3 हम 2 से करेंगे. मैम उसको बताएंगे तो ऐसे ना, पहले 1 2 फिर से 2 से कर, फिर 3 से कर, ऐसे. तो सीक्वेंस सिखाएंगे ना सर. 1 से 3 क्यों सिखाएंगे? 1 2 3 सिखाएंगे. हाँ, और ठीक बेटा है. 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है, तो इसीलिए उससे फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता 1 से, राइट? सो यू हैव टू बिगिन समवेयर. सो यू से राइट 12 एंड यू डिवाइड इट बाय 2. तो क्या आंसर आएगा? 6. ठीक है. 6. Now you'll say that the answer is 6. So we again divide it by 2, right? And Yes. it comes out to be 3, 3. right? And now when there is 3, now you can't divide it by 2. So what will you say? Divide it by 3 and write 1. As soon as you get 1, stop doing any factorization, right? And you write 12 equal to, जैसा अभी सर ने बताया, 2 into 2 into 3. ऐसे ही करेंगे. Yes, ma'am. Simple. Yes, ma'am. So how did you begin with it? You began dividing the number given, which is 12, starting from 2. Okay? करते गए, ऐसे ही सिखाया. और जो डिवीजन होने के बाद क्वोशंट बचता है, उस क्वोशंट को नीचे लिखते जाते हैं, राइट? एंड नाउ इफ यू गेट एन ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यू से ट्राई डूइंग इट विथ 3. इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ट्राई 4. पर इवन है अगेन, इट वोंट डिवाइड, सो यू से दैट इसको डिवाइड करो 5 से. इसी तरह से हम करते जाते हैं, राइट? सपोज 13 आता, तो आपका, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को तो मेमोराइज करना होता है. 13 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 7 8 9 10 11 12 एंड इट रीचेस 13. फिर बोलेगा 13 1 सा 13 होता है. एंड नाउ यू कैन राइट फैक्टराइजिंग 13 एज 13 into 1, क्योंकि इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं, राइट? प्राइम नंबर्स के साथ में ऐसे ही होगा कि और कोई फैक्टर्स बनेंगे ही नहीं. सो this simple set of steps
crisply translated into any programming language makes up a program. You have to think at this level of simplicity. When you don't know any complicated algorithms, you don't know any complicated functions that are already written, you are new to something, new to this programming thing. So you think like a child. And when you think like a child, you'll be able to solve every problem in simple steps. किसी बच्चे को कोई कंसेप्ट समझाना है कि भाई फोटोसिंथेसिस समझाना है, राइट? How would you explain photosynthesis in the simplest ever steps known to you? Anyone? Anyone? फोटोसिंथेसिस तो गूगल ने करना पड़ा था ना, ये तो बचपन से पढ़ा दिया था. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं सनलाइट यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके. ऐसे पढ़ाएंगे, स्टेप्स में बताना है. आप किसी बच्चे को समझा रहे हो, आप एक लाइन में तो वाइवा देते हो, वाइवा नहीं देना है. व्हेन यू वांट टू एक्सप्लेन इट टू समबडी, सो इट हैज टू गो इन स्टेप्स, राइट? तो थोड़ा सांस लो सेंटेंसेस के बीच में और फिर बोलो द सेम थिंग. चलो. प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, वो सनलाइट यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं और उससे वो फिर ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं. अरे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लीफ है वो तो गया ही यहाँ पे, लीफ तो आया ही नहीं. यू कांट मिस द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. सो उसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, इसलिए के थ्रू ही होता है. yes, that is the engine that does this transformation, right? You will say it like this. चलो, अब इसी सिंप्लिसिटी के साथ में सपोज मैंने कहा आपको कि मैंने 10 नंबर दिए हैं आपको, कोई से भी रैंडमली 10 नंबर्स आर गिवन टू यू एंड आई गिव यू अ चिट. चिट के अंदर में एक नंबर लिखा हुआ है और आपको कहा कि आपका जो है टारगेट है, जल्दी से बताओ कि ये जो चिट में नंबर है वो उस लिस्ट में है कि नहीं है. तो आप क्या करोगे? आपको दोनों ही चीज़ें नहीं पता, चिट के अंदर क्या नंबर लिखा है ये नहीं पता और लिस्ट में जो 10 नंबर्स हैं वो भी नहीं पता. तो ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल स्टेप्स एंड टेल मी हाउ वुड यू डू दिस. रैंडम एक गेम है. सो हाउ डू वी डू दैट? उसको बोलेंगे एक चिट निकाल और उससे नंबर मैच कर, हो रहा है तो मैच करो. मैच करने के लिए 10 नंबर्स हैं तो सबसे पहला पहले नंबर पे जाओगे, फिर दूसरे नंबर पे जाओगे. स्टेप्स बताने हैं ना बेटा, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप्स. अनलेस यू ब्रेक एनीथिंग इनटू स्टेप्स, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा. सो ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप्स. इसी को थोड़ा सा और इलैबोरेट करो. You open the number in the chat, right? Step 1 यही हुआ. पहला नंबर ओपन किया तो वो अगर लग गया तो वही होगा, अगर वो नहीं लगा तो उसको साइड में रख के दूसरा ले गए, दूसरा खुला तो वो लग गया तो उसको रखेंगे, बाकी वो नहीं खोलेंगे, बाकी को जब वो नहीं लगा. हाँ, ऐसे अगर खुल गया बीच में तो रख लेने का, रख लेंगे और नहीं तो आगे बढ़ते जाना. आगे बढ़ते जाने. जो ये आपने समझाया इसे सर्चिंग कहते हैं. अभी तो ये एलिमेंट्री लेवल है, पर जब आगे कंप्यूटर साइंस के जब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बनाने के लिए आएंगे तो जो आपने अभी समझाया स्टेप्स में, इसके हम सर्चिंग का एल्गोरिथम और सर्चिंग का प्रोग्राम बनाएंगे. और सर्चिंग बिल्कुल ऐसे ही होती है. अगर आपको लिस्ट में पता हो कि वो नंबर कहीं लिखा हुआ है तो आप तो तुरंत ही बता दोगे हाँ ये तो है, ये तो 2 बार हो सकता है लिस्ट में. पर अगर आपको नहीं पता हो तो आप क्या करोगे? एक एक नंबर्स को जाके मैच करोगे ना, कि जो चिट में है इक्वल टू जो लिस्ट में पहला नंबर है, चिट में जो है इक्वल टू लिस्ट में जो सेकंड नंबर है. दिस इज हाउ प्रोग्राम्स आर मेड. व्हेन वी break down all the complicated processes into simple steps, then only you can write a program. Okay? So ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि it's not difficult to think simple. कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं क्या बच्चों के जैसे सोचने में या स्टेप्स में सोचने में? Do you need any additional qualification or certification to think simpler?
लगता है क्या? नो मैम। हम आपको बोलें कि भाई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज पढ़नी है तो सर्टिफिकेट लो, कोर्सेरा में जाओ या कहीं ऑनलाइन किसी यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एनरोल करो, पर बच्चों जैसा सीखना है तो आप तो उस फेज से आ चुके हो. सो राइटिंग प्रोग्राम इज नॉट डिफिकल्ट व्हेन यू थिंक in a very simple manner, that when you solve anything stepwise it will definitely be solved. और नहीं होता तो बच्चे क्या करते हैं, आपने एक उसको रिकरिंग डिवीजन दे दिया, अब वो 3 1 3 3 3 3 करते करते थक गया तो वो क्या बोलेगा बच्चा आपको, नहीं हो रहा है। बस अब ये रिपीट हो रहा है, अब मैं नहीं कर रहा हूँ. वो भी हाथ खड़े कर देगा. आप भी प्रोग्राम में ब्रेक लगा के बाहर आ सकते हो. हमने आपको वैसे ही कंट्रोल्स दिए हैं जैसे एक बच्चा सोचता है. प्रोग्रामिंग इज नथिंग. डेवलपिंग लॉजिक मीन्स थिंकिंग इन दीज स्टेप्स. ओके, so now everybody can program because everybody has gone through that stage. Everybody knows how to write it anything into steps. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. सबके बैंक अकाउंट होंगे ना, सबके Yes, ma'am. मम्मी पापा बना देते हैं बैंक अकाउंट. सेठ आपको पैसे निकालने हैं एटीएम से. अब इसके स्टेप्स बनाने हैं, राइट? यू हैव टू राइट क्लियर स्टेप्स. सो बिगिन स्टेप 1. कार्ड मशीन में स्वाइप करना है। कार्ड पॉकेट में से निकालेंगे, बाद में उसको मशीन के अंदर डालेंगे, मशीन के डाल अंदर दिया, फिर पिन डालेंगे, पिन में जाके कैश जी. विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, बाद में अमाउंट एंटर करेंगे, ओके देंगे, ओटीपी वाला होगा तो ओटीपी आएगा, आएगा. और नहीं तो देन प्रिंट रिसीप्ट। प्रिंट रिसीप्ट और आपका पैसा निकल गया. अब चलो इसको थोड़ा सा ये सोचते हैं कि अगर ये सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तो बीच बीच में जो आपने जो काम किए हैं इसके बीच में सॉफ्टवेयर क्या क्या कर रहा है वो जोड़ दो. से इट स्टेप 1. पॉकेट से कार्ड निकाल के आपने मशीन में इंसर्ट किया. नाउ व्हाट विल द सॉफ्टवेयर डू? उसने कार्ड को स्कैन किया, स्कैन करेगा, राइट? स्कैन करके क्या पता करेगा? कि ये कार्ड नंबर, कार्ड की डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स। नहीं, सबसे पहले वो ये देखेगा. बहुत सिंपल सोचो. आपने कभी कार्ड उल्टा लगाया है? मेरे से तो गलती हो जाती थी शुरू शुरू में. आई एट टाइम्स व्हेन आई एम इन अ हरी आई डू नॉट इंसर्ट द कार्ड प्रॉपरली, तो वो जोर से एक फ्लैश करता है मैसेज, योर कार्ड इज नॉट इंसर्टेड प्रॉपरली. तो वो सारी पंचायत करने के पहले ये सोचेगा, ये चेक करेगा कि वेदर द कार्ड इज अ वैलिड कार्ड इंसर्टेड इन द मशीन इन अ राइट वे और नॉट. सिंपल. आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ोगे आगे चल के, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट आपका यही चेक कर रहा है. सो इसने कार्ड चेक किया, चलिए, राइट? नाउ द कार्ड इज इंसर्टेड प्रॉपरली. देन यू पीपल सेड दैट देयर इज अ प्रोसेस टू वैलिडेट द डिटेल्स ऑफ द कार्ड. So what are the details in the card that the bank should check, the machine should check? कार्ड नंबर, अकाउंट बैलेंस, कार्ड कार्ड नंबर. नेम एंड पिन। सुनो सुनो सुनो, एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके बोलते हैं. कार्ड है अभी, हाँ अभी आपने बिल्कुल उसको पैसे निकालने नहीं बोला है, इसीलिए बैलेंस वैलेंस पे तो जाए ही नहीं. अभी हमने क्या बोला, उसको कार्ड डालना है. सो कार्ड का नंबर होगा. देन कार्ड एकदम ओरिजिनल है या नहीं है वो भी चेक करना ठीक होगा। है, हाँ कार्ड नंबर से और वो जो आपकी चिप लगी हुई है उससे वो बाद में बैंक का नाम, कौन बैंक सी का बैंक, नाम. गुड. हाँ, क्योंकि बाद कोड में है. इसीलिए अगर आप ज्यादा पैसे निकालने के लिए जाएंगे और बैंक का एटीएम नहीं है तो वो वहीं पर ही बिना अंदर खाते पे जाए वो आपको बोल देगा आप नहीं निकाल सकते पैसे, राइट? सो इसीलिए बैंक का नाम जाना जरूरी है. ये हो गया सही. और मैम वो बाद सब में एक्सपायरी डेट्स। होगा ना। एक्सपायरी डेट, यस. तो बाकी वैलिडिटी रिलेटेड चीजें हमने इकट्ठी कर ली, राइट? सो नाउ द वेरिएबल इज द कार्ड नेम, द बैंक नेम and the validity, expiry and everything. Now the card is also valid. तो पहला स्टेप था कार्ड इंसर्टेड प्रॉपरली, जो कि थ्रू हो गया. सेकेंड थिंग, द कार्ड इज वैलिड. नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू विड्रॉ मनी. सो व्हाट विल इट से? हमें पूछेगा कि आपको क्या करना है,
हम कहेंगे पैसे विड्रॉल उठाना है करना तो है। बैलेंस चेक करेगा। अभी फिर से डोंट जंप। आई पहले सेड लैंग्वेज द पूछेगा, वैलिडिटी ऑफ इंग्लिश द कार्ड। हिंदी सबसे गुजराती पहले और तो वो आपसे पिन पूछेगा, कोई भी काम करना है, अब आप घुस गए, वैलिडिटी है तो इट विल प्रॉम्प्ट फॉर अ पिन, राइट? नाउ व्हाट विल द सॉफ्टवेयर डू? व्हाट शुड द सॉफ्टवेयर पूछेगा। डू? पिन चेक करेगा। पिन चेक करने के लिए पिन किसके पास रखा हुआ है? कार्ड रीडर तो डब्बा है, मशीन है, एटीएम है, उसके पास है क्या आपके बैंक की डिटेल्स? ईएमवी चिप्स है, सॉफ्टवेयर के पास। किसके पास है? सॉफ्टवेयर चिप में स्टोर होता है मैम वो सॉफ्टवेयर के तो। पास नहीं है, ये कहाँ पर रखा हुआ है? सी इट इज अ डेटा, द डेटा मस्ट बी केप्ट समवेयर, सो वेयर इज दैट डेटा? आपके फोन में डेटा है ना, तो वो वैसे ही जो आपके बैंक के कस्टमर की डेटा डिटेल में थी, होगा। बैंक के पास होगा ये, राइट? बैंक के पास होना चाहिए कि नहीं? एसबीआई का कस्टमर है तो उसके रिलेटेड डिटेल्स किसके पास होंगी? एसबीआई के पास। एटीएम के डब्बे में तो नहीं होगा, तो इसीलिए मैसेज किसको जाएगा? एटीएम की मशीन से मैसेज कहाँ जा रहा है? एसबीआई को। एसबीआई को, जो आपने बैंक का नाम ढूंढ के निकाला था ना, उस बैंक के सर्वर पे जाएगा मैसेज कि ये वैलिड है कि नहीं, और फिर तुरंत पिन पलट के वापस आएगा कि वैलिड है कि नहीं वैलिड है, राइट? तो कार्ड की वैलिडिटी चेक हो गई, अब पिन की वैलिडिटी भी चेक हो गई। हो गई चेक? यहाँ तक क्लियर है? यस Yes. मैम। नाउ अब पूछेगा, अब बताओ क्या करना है? पिन भी वैलिड है, कार्ड भी वैलिड है, मतलब आप पक्का अकाउंट होल्डर हो। So now you will be prompted with all the activities that you can do with the card. So you said that you have to take out money, withdraw. यस मैम। So now you have clicked on withdrawal. Now what will happen? कितना मनी? अमाउंट सेट करना। मांगे अमाउंट मांगेगा कि आपको कितना निकालना है। So you will write स्कैनर 780. ओके। वैलिड है? ओके। मैम 780। उससे 50 और 100 का ही ऐसा कुछ होता है, 5 के डिनोमिनेशन में होता है ना एटीएम में तो। मैम 50 का भी नहीं होता 500 सर। के हाँ ऐसा कुछ 500 होता के है आपको recurring फाइव। मिलता है, हाँ, तो 500 के अभी भी मल्टीपल्स में। तो सोचिए, अभी भी बैंक तक जाके बैलेंस चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि आपने अमाउंट ही गलत डाला है। तो अभी यहाँ पर क्या चेक हो रहा है इस इंटरफेस लेवल पे? वेदर यू आर गिविंग द इनपुट ऑफ द अमाउंट टू बी विड्रॉन इन द मल्टीपल्स ऑफ 100 और नॉट। ये 100 की डिनोमिनेशन से नीचे के नोट नहीं निकल सकते, राइट? तो यस क्या मैम। चेक होगा? the amount you have entered. Suppose we have entered 2000 rupees. Now, happy path. Now the amount is also valid. So what will happen? चेक करेगा उसके पास है इतने या नहीं है। Yes, account balance. वो एक मैम अभी बहुत देर से अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाह रहे थे. Now is the point where the balance of the account will be checked. If you don't have 2000 rupee, how will it withdraw? So it will be like the amount in the balance will be checked and चलो है पैसे आपके पास में, तो वो क्या पूछेगा अब? हम बैंक अकाउंट पूछेगा करेंट से निकालने की सेविंग से। सेविंग से निकाल, आपने सेविंग, चलो टाइप ऑफ अकाउंट भी बता दिया, फिर हमने फिर सेविंग कर दिया, फिर और ना उसके पास नहीं दिखेगा नहीं कि ओटीपी आता है शायद, और कभी पिन नहीं, भी अभी अब सब कुछ वैलिड है, अब सब कुछ वैलिड है, हम यहाँ तक अब पहुँच गए हैं, तो अब वैलिड है, तो अब कैश डिस्पेंस हो जाएगा, राइट? मैम लेकिन उसके पास नहीं होगा तो एटीएम में। हाँ ना, तो ठीक है ना, मतलब बैंक से तो इंस्ट्रक्शन मिल गए ना, इफ बैलेंस इज मोर देन अमाउंट रिक्वेस्टेड कैश कैन बी डिस्पेंस्ड। लॉजिकली तो ऐसे ही होता है। अब डिब्बे के पास में है कि नहीं ये नहीं पता ना, बैंक से तो थ्रू है ना आपका, बैंक में तो लॉजिक नहीं रुका कहीं पे। यस मैम। अंडरस्टूड? सो नाउ इट विल come back as a message to the ATM, dispense cash। चलो एटीएम में कैश भी पड़ा हुआ है, तो आपको उतना कैश निकल आएगा, फिर क्या होगा? रिसीट चाहिए या नहीं चाहिए वो पूछेगा।
अरे आपके पैसे निकल गए हैं डिस्पेंसर से, सो इट विल नॉट अपडेट योर बैलेंस। -2000 नहीं करेगा क्या वो वहां पर जाके वापस बैंक में? रिसीप्ट करेगा आएगी। करेगा करेगा, क्योंकि अगर डिस्पेंस नहीं हुआ होता, डिस्पेंसर के पास नहीं होता कैश, सो इट वुड हैव बीन ऑन होल्ड। जब होल्ड पे होगा तो माइनस नहीं होगा, पर अगर डिस्पेंस हो गया है कैश तो अकाउंट मस्ट बी अपडेटेड विद अ न्यू बैलेंस विच इज और फिर माइनस बैंक से 2000। मैसेज आएगा, यस, डू यू वांट बैंक टू? से मैसेज आएगा हाँ, कि अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड ऑफ यस 2000। यस, आपको एसएमएस भी आता है पैरेलल तुरंत ही। सो दिस सिस्टम डज दैट आल्सो, करेक्ट। एंड देन फाइनली पैसे ले लो, कार्ड निकाल पैसे लो, ले लो, जाओ। निकालो और जाओ, हो गया। कितनी बार सॉफ्टवेयर ने काम किया जो कि आपकी मशीन में है ही नहीं, बट इट इज रिसाइडिंग इन सम सर्वर, and the server is accessed with the network, because you are instrumentation and electronics people, you will be working on this only. So what is the performance of a network when you can withdraw the money within 5 minutes? 5 minutes भी ज़्यादा बोल दिया ना मैंने, hardly 2 minutes. So can you see how fast the software is working for you, and the network technologies are actually integrating with the software and working? There are 3 stages of working. One is your machine, where you have inserted the card and where you will pull the money out. The second is the network that takes the message and comes back with a message. And third is the server. And the server is not located right next to the ATM. Server कहाँ है? Where can be the server? बैंक में। बैंक। Not in the bank, not even in the bank. Data centers होते हैं बहुत बड़े बड़े। कभी भी डेटा आप बैंक के साथ में रखें, मुंबई में से ही बैंक है, मुंबई में बाढ़ आई तब तो सर्वर डूबा तो पैसे भी डूब जाते, पर ऐसा होता नहीं है ना। दीज आर डेटा सेंटर्स वेयर द डेटा इज केप्ट, देर आर ह्यूज सर्वर्स, एंड वेयर यू कीप द डेटा इज अ डेटा सर्वर देयर। दे आर लोकेटेड, चेन्नई में होगा, मुंबई में होगा, ऐसे जोग्राफिकली डिस्टिंक्ट पार्ट में, एंड यू आर विदड्रॉइंग द मनी फ्रॉम हियर अहमदाबाद. So this is what a software can do for you, and you will be writing the software for this only. So writing the program for plus and minus is not the point. Writing the program to solve certain problems is the point, and anybody can write a program. Correct? Yes, ma'am. आपने अभी बताया कि नहीं? अगर आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर सिखा दिया जाए तो विल यू नॉट बी एबल टू राइट दी सॉफ्टवेयर फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन एटीएम? अगर आपको स्टेप्स पता है तो आप बोलोगे आई नो दी स्टेप्स, आई जस्ट वॉन्ट टू पुट दिस इन टू द सिंटेक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड एज सून एज यू मैप इट इन टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम बन जाएगा. दिस इज लॉजिक, जिसको यहाँ पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं. लॉजिक इज द वे इन विच द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, राइट? प्रोग्रामिंग आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए नहीं सिखाते कि क्या है, रन नहीं हो रहा, चल नहीं रहा. You have been taught this subject to develop a logic that whenever you will be working with, no machine is without a software today. Even your washing machines at home, they have the software. है कि नहीं है? कोई कुछ नहीं बोल रहा. Your TV, does it not have a software? Yes, ma'am. Yeah. और ये सब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास ही है सब कुछ. ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही हैं जो आप बनाओगे, और सब में सॉफ्टवेयर है. आपका रिमोट कंट्रोल छोटा सा, आजकल तो वो क्या कहते हैं उसको, मल्टीपर्पस रिमोट्स होते हैं. टीवी भी उससे चलता है, डीवीडी प्लेयर भी उससे चलता है, और छोटा सा एक सर्किट रहेगा, एम्बेडेड सिस्टम जिसको कहते हैं, उसमें भी वही सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं उल्टे पुल्टे, कि बटन दबाओ तो क्या होना चाहिए.
तो करेक्ट। एलेक्सा भी है उनमें। अब तो एलेक्सा भी है, सारे एम्बेडेड सिस्टम है। सोचो, यू आर द पीपल हु विल बी वर्किंग विद द सॉफ्टवेयर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सॉफ्टवेयर वाला तो हो सकता है सिर्फ वेबसाइट बनाए, आपको तो ये जो फोन लेके घूम रहे हो, दीज आर ऑल्सो एम्बेडेड सिस्टम्स। तो जिम्मेदारी किसकी है ज्यादा सॉफ्टवेयर पढ़ने की? हाँ हम्म भाई। तो फिर तो फिर अच्छे से पढ़ना चाहिए। और इसीलिए ये जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है लॉजिक बिल्डिंग की, ये आप कोशिश करें कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएं, रन करें, कोशिश करें बनाने की। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रोबोटिक। कार आ रही है। आई वाज सीइंग द एड ऑफ Hyundai दैट डे। क्या है? द न्यू कार ऑफ Hyundai that is similar to what Alexa can do. मतलब you can switch it on, it's an intelligent car। आता है कि नहीं? टीवी देखते हो कि नहीं देखते हो? कि सिर्फ पढ़ाई करते हैं अपन ऑनलाइन? अब तो बंद हो गया मैडम। क्यों बंद हो गया? टीवी बंद क्यों? टीवी बंद क्यों सर? टाइम नहीं मिलता है शाम को 6 बजे, अब तो जाते हैं बाद में हम्म पढ़ाई वो सभी रहता है। उसके बाद आपको आपको खाना बनाना पड़ता है घर पे। आप कहाँ बिजी होते हो 6 बजे के बाद? टीवी से ज्यादा इजी सब मैं लिखना होता है। वगैरह पे, ओटीटी वगैरह पे इजीली कंट्रोलेबल है। हम्म अरे सर, आप लोगों के पास बहुत टाइम है, बहुत सारा टाइम है, और आपने एक्सप्लोर करना चाहिए। When you're looking into some good programs, even you can get good ideas when you see a TV. Don't see TV to irritate your mothers at home or parents at home. See the TV or the movies or the shows, good shows, to get some idea from there. अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री ले ली है ना, सो आपको अपनी स्किल जो है वो सारी तरफ ही बढ़ानी है। पता नहीं, I see a lot of TV because I get so many things to learn from there. Not even serials. I'm not talking about movies and serials. There are so many other things that actually come. हम वैसे तो बहुत देखते हैं वो वाला तो। तो फिर वही तो पूछ रही हूँ। अरे सर, मैं क्यों आपको मूवी देखने मुझे बोलती लगा आप सीरियल वाली बात कर रहे हो, टीवी मतलब। नो नो, नॉट सीरियल्स। वैसे सीरियल में भी शार्क टैंक इज गोइंग टू कम। यस, अल्काजर हुंडई, राइट। शार्क टैंक सेट में देखा है आपने ऐड? कोई देखता हो टीवी पे? हाँ मैम, शार्क टैंक के थोड़े क्लिप्स देखे हैं। यस। तो बेटा, अभी जब आप उसको देखोगे तो आप ये मान के चलिए कि आपको भी इन्हीं की रेस में जाना है ना। लोग आईआईटीज एंड आईआईएम को ड्रॉप करके और लोग स्टार्टअप खोल रहे हैं अपना। आप डिग्री करते करते भी खोल सकते हैं ना। सो इज इट नॉट गुड टू सी हाउ पीपल पिच फॉर देयर आइडियाज? दे ओनली हैव आइडिया इन देयर माइंड एंड ऑन पेपर। कुछ बना नहीं होगा, बट दे say how their idea is better than any other ideas that are existing or any other product that is existing. Isn't it challenging? Yes, ma'am. So why is it wrong to see television when there are other good shows also that you can see? I think I will tell my daughter even to see that. So if I can say my daughter to see that, I can tell everybody to see. मम्मियाँ सबसे ज़्यादा जो होती है ना, वो चूजी होती हैं। वो सोच के बोलती हैं, भाई ये क्या देख रहे हो? पिटते रहते हैं बच्चे। सो इफ अ मदर सजेस्ट समथिंग, दैट मीन्स थोड़ा तो ठीक ठाक होगा। अग्रीड? तो बेटा, डेवलपिंग लॉजिक, ओके, इज आर टारगेट। जो इतना ट्यूटोरियल लैब कर रहे हो, अब अपना एम ध्यान रखना। वाई आर वी लर्निंग ऑल दिस? ओके, you're not going to make a simple program to add two numbers and subtract and calculate the average in percentage. You'll be using this particular logic into some bigger programs that you will write. Okay? Yes, चलो, तो
ये प्रोग्राम क्या करने वाला है, थोड़ा सोच के बताएं। Yes, it is going to print n, and n is integer. So what is it doing? See the steps. N कोई भी random input the user has given. Let us assume it is 5. While 5 is more than 0, माने 5 times चलेगा ये भी बात पक्की हो गई है. So what is it doing? It is assigning the value 5 to C. Right? यानी कि कुछ नहीं कर रहा है, एक और वेरिएबल सेम वैल्यू के साथ में चलाना है. एंड वाइल C is more than 0, ऑब्वियसली 5 है, 5 की वैल्यू तो 0 से ज़्यादा होगी, तो वो प्रिंट n करेगा, यानी कि प्रिंट 5 कर दिया. और C को C-1 यानी C बन गया 4 बन गया, 4 0 है, तो प्रिंट अगेन n यानी कि 5. सो 5 5 टाइम्स, और जैसे ही 0 हुआ तो वो बाहर आ जाएगा वाइल के, पर n को भी -1 कर देगा, तो n जो 5 था वो बन गया 4. And now it will work the same way with 4, and then 3, then 2, and then 1. But it will print how many times? पहली बार में 5 बार, दूसरी बार में 4 बार, तीसरी बार में 3 बार, and so on. Correct? ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी तक हमने डिस्कस किया कि इफ देर इज अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व इट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस विल ऑल्सो हैपन. करके देख लेना क्या होगा. See the output and see the program. What were we trying to do? We were trying to print 1 1 time, then 2 2 times, then 3 3 times, then 4. Fourth row में 1 2 3 4 4 times printing, fifth row में 5 times printing. तो पहली बार में एक ही बार प्रिंट हो और वो वैल्यू हो 1. पांचवी बार में 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट चले, बट इट शुड इंक्रीमेंट फ्रॉम 1 2 3 4 and 5. Imagine how it will be put into program. This is an application of for loop, and most of the pyramid kind of problems will be solved with this logic. बस जे की जगह स्टार लिख दोगे तो स्टार प्रिंट होगा वहां पे. प्रिंट एफ %d लिखा है जहां पर जे के लिए, वहां पर अगर आप स्टार बना देंगे तो उतनी बार स्टार ही प्रिंट करेगा बस. राइट? तो हमने किया क्या इस प्रोग्राम में? What have we done here? सारे सन्नाटे में क्यों आ जाते हो? Anyone? मैंने कहा ना बिल्कुल सिंपल समझना है और बिल्कुल सिंपल सोचना है. पहला फॉर लूप कहां से कहां तक गिनती कर रहा है? पहला वाला फॉर लूप जो है वो 1 से स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से इनपुट तक ले रहा है. नहीं, सिर्फ आई वांट द आंसर फॉर द ओनली द फर्स्ट फॉर लूप. द फर्स्ट फॉर लूप, हाउ मेनी टाइम्स विल इट रन? फर्स्ट फॉर लूप जो लिखा है, पहला वाला फॉर लूप,
वन टाइम हाँ, फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू i लेस देन इक्वल टू n, यानी i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू 5 तक, तो कितनी बार चलेगा? 5 टाइम्स 5 टाइम्स चला, राइट? और वो भी प्लस प्लस, यानी एक एक बार इंक्रीमेंट करके। पहली बार में एक बार चलेगा, दूसरी बार में 2 बार, तीसरी बार में 3 बार, चौथी बार में 4 बार चलाना है। तो अब हमने रो तो काउंट कर लिए 1 टू 5 पहले फॉर लूप के अंदर, पर हर रो के अंदर कितनी बार प्रिंट होना है वो भी इंक्रीमेंटल है, 1 2 3 4 5, राइट? तो हमने क्या किया, रो के बाद कॉलम गिनने के लिए एक दूसरा फॉर लूप लगा लिया, और वो कॉलम भी कहाँ से कहाँ तक काउंट करेगा? j इज इक्वल टू 1 से लेकर j इज लेस देन इक्वल टू i तक, यानी कि जब पहली बार में i 1 होगा तो j कितनी बार चलेगा? If I is equal to 1 for the first time, how many times will j execute? वन टाइम 1 time. If I की वैल्यू 5 है तो j कब कितनी बार चलेगा? 5 टाइम 5 टाइम्स, क्योंकि आपने j को उतना ही चलने बोला जितनी वैल्यू i की लूप के अंदर होगी, करेक्ट? So when you begin with I equal to 1, j will take up only one step. When I is equal to 2, j will be counting from 1 to 2. When I is equal to 3 for the third time, j will count 1, 2 and 3. Can you see this happening in the output also? 1, 1, 2, 1, 2, 3. And what are we printing? The value of j. For the first time, because j is going to run only once, so it will write only 1 because the value of j is equal to 1. In the second time, I is equal to 2, so j has to run 2 times. I जो है की वैल्यू तो 2 है, पर j की वैल्यू फॉर लूप के अंदर चलेगी, दैट मीन्स इट विल फर्स्ट से 1 एंड देन से 2 and then it will end, correct? So this is called as nesting of loops. Understood? Understood or not? अंडरस्टूड मैम। So मैम हाँ, मैम ये समझ नहीं आया मुझे, ये दूसरी बार जब फॉर लूप में जे क्यू अच्छा सुनो। हमें इसको एक मैट्रिक्स के जैसे सोचना है। इमेजिन देर आर 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, करेक्ट? इमेजिन कर सकते हो इसको मैट्रिक्स जैसा। अब जो पहला रो है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम फिल होगा 1, करेक्ट? ये आ रहा है कि नहीं समझ में? आप मेरे साथ बोलते जाओ, मुझे वरना समझ में नहीं आएगा whether you are listening or not, यस right? मैम। And for the second time, that is row 2, जब रो 2 में आएंगे तो ओनली 2 कॉलम्स विल बी फिल्ड। ये भी सही है, बाकी ब्लैंक रहेंगे, करेक्ट? ओके चलो, मैम। तो हम ऐसा करते हैं, रो के लिए एक काउंटर बनाते हैं जिसका नाम है आई, करेक्ट? सो आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 4 एंड आई इज इक्वल टू 5। आपको 5 रोज ही प्रिंट करने हैं, और 5 रोज के अंदर में 5 कॉलम हो सकते हैं, पर पहली रो में कॉलम कितने चाहिए हमें? 1 ही चाहिए। तो हमने क्या किया, सेकेंड फॉर लूप को सिर्फ आई तक ही चलने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया। जे काउंटिंग तो शुरू करेगा 1 से, बट कहाँ तक करेगा? जो रो नंबर में रहेगा वहां तक, जो रो नंबर है। जे तो कॉलम नंबर है, पर कॉलम नंबर कहाँ तक फिल होगा? जो रो नंबर है। यानी कि अगर रो नंबर 4 है तो कॉलम कहाँ तक फिल होगा? 4 तक। 4 तक। इसीलिए जे को लेस देन इक्वल टू आई ही रखना पड़ेगा, कोई और नंबर नहीं दे सकते। अगर 5th रो है तो वो कहाँ तक फिल होगा? 5 तक। 5 तक। तो j इक्वल टू आई कर देने से वो आई तक अपनी गिनती करेगा। पहली बार में 1 तक करेगा, दूसरी बार में 2 तक, और 5वीं बार में 5 तक। क्लियर? यस मैम। नाउ इज इट क्लियर?
फॉर लूप इज जस्ट लाइक अ काउंटर। जैसे आपने इसको डांट के कह दिया भाई 1 से 20 तक की गिनती तुझे लिखनी है, so what will it do? It will start with 1, which is called as initialization. It will end at 20, so you'll write I is less than equal to 20. और ऐसे नहीं करना कि 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 10 करना। आपने उसको कहा है भैया सीक्वेंस में 20 टाइम्स लिखना है, सो आई प्लस प्लस लिख दिया ताकि ये पता चले कि हर बार आई की वैल्यू एक ही आगे बढ़ेगी। यानी कि इफ इट इज 1 इट विल बी 2, देन इट विल बी 3 एंड इट विल काउंट टिल 20. So for loop is just like a counter, correct? Tick 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 counting only. Understood? Yes, ma'am. So you have to read some slides that are already there. I have posted it, and then you should also try practicing some problems. Okay? We'll take this up in the next tutorial also. Don't worry. जिससे जितने प्रोग्राम्स बन रहे हैं उतनी कोशिश करो, right? And don't forget, you will be writing most of the programs and nobody else. And what programs you are going to write, everybody will be using it. वेबसाइट कौन देखता है पता नहीं, पर टीवी तो हर कोई देखता है। तो be proud that you will be writing the most useful programs on earth. Okay? Yes, ma'am. तो अब का प्रवचन खत्म करें। बेटा पहले पढ़ तो लो, सबमिट क्या करोगे? अच्छा मैंने सबमिट करने कह दिया तो आप कहीं से टिप टाप के बराबर मुझे पहुंचा दोगे। हमने 2 साल ऑनलाइन करके ये तो बहुत अच्छे से सीख लिया है, पर मुझे ऐसा चाहिए ही नहीं ना। अंडरस्टूड? जिस दिन आप रेडी हो जाओगे कि यू कैन राइट ऑल द प्रोग्राम्स, यू कैन राइट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम दैट आई गेव, यू सबमिट द ट्यूटोरियल दैट डे। ओके? बस ये सेमेस्टर के एंड में कर ही देना, पर सेमेस्टर के स्कोप के बाहर नहीं जाना चाहिए सबमिशन। मतलब ये ज़बरदस्ती इतनी है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी आप प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख लें। करेक्ट? Yes, ma'am. चलो, सो Thank you, ma'am. हम्म, Thank you, ma'am. थैंक यू। ओके, वेलकम बेटा। Bye, ma'am. तो हाँ जी, थैंक यू बेटा, गुड डे। चलो पढ़ाई करो अच्छे से।